Let's see question number 6. So first read example. So see, example is out of 1900 kilometer. Means total distance is given 1900 kilometer. So out of 1900 kilometer, we shall travel some distance by bus and some by aeroplane. Bus travel with average speed 60 km per hour and the average speed of aeroplane is 700 km per hour. It takes 5 hours to complete the journey. Then find the distance we shall travel by bus. So student, here total distance is given and that distance is traveled by two methods. Some part is by bus and some part is covered by aeroplane. जैसे कि आप जानते हैं कि बस की स्पीड कम होगी जो यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर मीन्स एक घंटे में सिर्फ 60 किलोमीटर जाएगी, तो वहीं पे एरोप्लेन जो स्पीड है उसका जो ऑरेंज स्पीड दिया है वो 700 किलोमीटर पर आवर। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एरोप्लेन की स्पीड कितनी होगी। तो यहाँ पे दोनों ही जो बस और एरोप्लेन है दोनों द्वारा जो डिस्टेंस कंप्लीट हुआ है वो 1900 किलोमीटर है, बट टोटल टाइम इज 5 आवर्स मीन्स सिर्फ 5 घंटे लगे। तो यहाँ पे आपको कंसीडर क्या करना है, बस से ट्रेवल किया हुआ जो डिस्टेंस है। जैसे यहाँ पे मान लो ये पॉइंट है A and suppose this is B. So some distance is traveled by bus, that is suppose x kilometer, and remaining part is by aeroplane, and this total distance, remaining distance is x kilometer. So we consider see steps. So first we write let the distance traveled by bus be x kilometer, and the remaining distance is traveled by aeroplane. The remaining distance is traveled by aeroplane is b y kilometer. So here first condition, so we write according to first condition means total distance, that is x and y. Some part is covered by bus and some part is covered by aeroplane, and when we add these two distances means x and y, that is x plus y equal to 1900. This is our first equation. Then for second condition we write here according to second condition. So you know formula is for speed equal to distance upon time. जब हमें distance और time दिया हो तो हम speed find करते हैं distance upon time, but here time is given, so we write here time is distance upon speed. Why? So here distance is given and the speed of bus and aeroplane are given. So here second condition. So first distance traveled by bus is x kilometer and the speed of that bus is only 60 kilometer per hour. So it is x upon 60 plus remaining distance, that is y, and the speed of aeroplane is 700 किलोमीटर and total time is 5 hours. तो ये सेकेंड इक्वेशन बन गया। तो आपको ये इंपॉर्टेंट है कि सेकेंड इक्वेशन कैसे बना। तो फार्मूला हमें पता है कि स्पीड इज दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, बट दैट
formula is converted into time. So for time it is distance upon speed. तो ये डिस्टेंस है बस का, जिसके लिए स्पीड दिया है 60 किलोमीटर पर आवर, और जो रिमेनिंग डिस्टेंस कवर हुआ है वो एरोप्लेन का. सो y अपॉन एरोप्लेन की स्पीड भी आपको दी है 700 किलोमीटर पर आवर, मीन्स 1 घंटे में 700 किलोमीटर चली जाएगी, और दोनों को मिलके जो टाइम है वो 5 आवर्स है. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा कि अब इसको एक सिंपल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करें. ये तो सिंपल था फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज x प्लस वाई इक्वल टू 1900. लेकिन यहाँ पे आपको अब डिनोमिनेटर सेम करना होगा, मीन्स टेकिंग एलसीएम ऑफ दिस 60 एंड दिस 700. अगर एलसीएम आपको नहीं मिलता है तो आप इजीली क्या कर सकते हो कि यहाँ पे इनका मल्टीप्लिकेशन, दैट इज द एलसीएम. अब एलसीएम अगर लेना है तो हम इजीली ले सकते हैं, लेकिन हम लोग भी यहाँ पे क्या करेंगे, x अपॉन, यहाँ पे चेक कर लेते, 6 7 जा 42 एंड दिस 30. ये एलसीएम मीन्स डिनोमिनेटर सेव करने की मेथड. अब एलसीएम यहाँ पे 2100 होगा, फिर 2100 के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई होगा, इसको किससे होगा. अगर आप उस मेथड से करते हो तो वो सिंपल हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को अगर एलसीएम नहीं आता तो वो लोग ये डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है. उसके बाद क्या करना है, ये 42,000 होने के लिए इसको 700 से मल्टीप्लाई होगा, मीन्स ये 700x, और इसको मल्टीप्लाइंग बोथ दिस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 60 to get this value. So this is 60y equal to 5. Then see, this is in division form, means in denominator, and when you shift this value on this side, that time see what happened. So when you shift here, it is 700x plus 60y equal to 5 into this 42,000. Again when you divide this value by 10, और अगर स्मॉलर करना है तो अगर हम लोग 10 से डिवाइड किया तो एक एक जीरो क्या हो जाएंगे, कैंसिल होके ये हो जाएगा 70x प्लस 6y इक्वल टू, इधर भी एक जीरो कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10, देन 5 4 जा 20 प्लस 1 21, और ये 2 0. तो देखिए वही एलसीएम आ गया 2100. तो अगर आपने वैसा किया होता तो भी हमें कैंसिल करने के बाद यही वैल्यू होती, इससे हम लोग मान लेते इक्वेशन नंबर 2. अब यहाँ पे देखना है कि हमें y के कोएफिशिएंट जो सिंपल है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे सिर्फ 1 है, तो हम इसको अगर किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6 से और इसको 1 से, तो यहाँ पे y के कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे. इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 6 and equation 2 by 1. So multiply each and every term by this 6. So it is 6x plus 6y equal to 19 6 19 into 6. So it is 54, and then 6 1 जा 6 plus 5 11 and 2 0. ये नया नंबर दिया, इसे हमने थर्ड, और यहाँ पे 6 है और 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई चेंजेस नहीं होगा, तो 70x plus 6y equal to 21,000. That is fourth number. Then change all the sign, सभी साइन को चेंज करते तो +6 -6y get cancel, and you know here plus minus and greater number sign. So 70 minus and this is plus. So 70 minus 6, that is
64 means minus 64x equal to, here also say larger number is 21,000 and 11400. When you subtract 0, 0, 10 minus this 4, 6, again take here, that is 10 minus 1, 9, and here it is 0. And larger number side means 9,600. So both side is negative, so 64x equal to 9,600. And therefore this x equal to 9,600 divided by this 64. अब इसे हमें 64 से डिवाइड भी करना है, डिवाइड कर लेते हैं. अगर 9,600 divided by this 64, so 64 बन जा, then 2 and this 3, take this 0, then see it is 5 ja, so 64 into 5, that is 0, 30 plus 2, 32, so 0, 0, 0, and here 0. So this x is 150. And what is this x? So this x is the distance traveled by bus. And here question is find the distance Vishal traveled by bus. तो यहाँ पे y के वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इजीली यहाँ पे आपको x मतलब जो बस द्वारा जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है. तो सिर्फ यहाँ पे फाइंड हटाना है, लिखना है द डिस्टेंस that Vishal traveled by bus is 150 किलोमीटर. तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाता है. एक समरी यहाँ पे हम लोग शॉर्टकट में रिवीजन करते हैं इस एग्जाम्पल के कि क्या किया हमने. तो पहले तो टोटल यहाँ पे जो डिस्टेंस दिया है कि 1900 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, और उसमें कुछ बस से और कुछ डिस्टेंस क्या किया है, एरोप्लेन से कवर किया है. इसलिए जब हमने कंसीडर किया लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस बी x किलोमीटर एंड द डिस्टेंस और रिमेनिंग डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड बाय एरोप्लेन बी y किलोमीटर. सो देयर सम इज 1900, that is our first equation. Then according to second condition, in second condition speeds are given. So see here the speed of bus, average speed of bus is only 60 km per hour, and the average speed of aeroplane is 700 km per hour. So here apply this formula, that is speed equal to distance upon time, or for time, that is important, for time it is distance upon speed. So distance traveled by bus and its speed is 60. So x upon 60 plus y upon 700 equal to 5. Taking LCM of this 60 and 700 is not in this value, it is 2100. लेकिन यहाँ पे हमारा एम क्या है कि ये डिनोमिनेटर सेम होनी चाहिए, तभी हम लोग न्यूमरेटर को प्लस कर सकते हैं. इसलिए मैंने 60 और 700 को क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया. नहीं तो मैं 2100 एलसीएम लेके इसको मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व करता, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने इससे मल्टीप्लाई कर लिया. फिर ये डिवीजन को यहाँ पे कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई कर लिया, फिर यहाँ पे 10 से डिवाइड कर दिया, तो एक एक जीरो क्या हो गई, इनके कैंसल हो गई. ये 700 का एक जीरो कैंसल हुआ, इसका एक इसका, तो यहाँ पे एक सिंपल इक्वेशन मिल गई. जिसके बाद हमने ये फर्स्ट और ये सेकेंड इक्वेशन को जब ऑब्जर्व किया तो यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 1 है और ये y का 6 है, और जब तक कोएफिशिएंट वेरिएबल के सेम नहीं होते तो वो वेरिएबल कैंसिल नहीं होता. सो वी राइट हियर मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन 1 बाय 6 एंड इक्वेशन सेकंड बाय 1. तो यहाँ पे ये जो सिंप्लीफाई है आप अच्छी तरह से कर सकते हो, और लास्ट में आपको सिर्फ x की भी वैल्यू लिखनी है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्टेंस दैट वी शैल ट्रैवल बाय बस. अगर एरोप्लेन से भी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो ये x की वैल्यू आपको फर्स्ट में पुट करके 1900 जो टोटल डिस्टेंस है उसमें से 150 क्या करना होगा, माइनस करना होगा. तो अच्छे तरह से इसकी रिवीजन